Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Samina Khan, lecturer, Southern Business School, Institute of Southern Punjab, Multan. We are going to start our lecture of business research. This is lecture number 10. आज का हमारा टॉपिक है डेटा कलेक्शन मेथड्स ऑब्जर्वेशन. प्रीवियस लेक्चर में हमने इंटरव्यूज के बारे में बात की और आज हम बात करेंगे ऑब्जर्वेशन के बारे में. So the learning objectives of this lecture are introduction, 4 key dimensions that characterize the type of observation, 2 important approaches to observation, and in this we have participant observation and structured observation, and advantages and disadvantages of observation. So ये हमारे इस लेक्चर की learning objectives हैं. Starting with introduction. Actions and behavior of employees, consumers, investors, and the like may play an important role in business research. Researchers and managers might be interested in the way workers carry out their jobs. The impact of new manufacturing techniques on employee activity in how consumers watch commercials, use products, or behave in waiting areas, or in how a merchant bank trades and operates, a useful and natural technique to collect data on actions and behavior is observation. अब जब हम बिजनेस रिसर्च की बात करते हैं हम कहते हैं कि इसमें एक्शंस और बिहेवियर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. अब ये एक्शंस और बिहेवियर्स एम्प्लॉयज के हो सकते हैं, कंज्यूमर्स के हो सकते हैं, इन्वेस्टर्स के हो सकते हैं और इसी तरह से दूसरे स्टेक होल्डर्स के भी हो सकते हैं. अब रिसर्चर्स और मैनेजर्स इंटरेस्टेड हो सकते हैं ये देखने में कि वर्कर्स किस तरह से अपनी जॉब परफॉर्म करते हैं, एम्प्लॉय एक्टिविटी पे न्यू मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स का क्या इम्पैक्ट होता है, कंज्यूमर्स किस तरह से कमर्शियल्स को देखते हैं, प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं, इसी तरह से वेटिंग एरियाज में किस तरह से वो लोग बिहेव करते हैं और उनका इंटरेस्ट ये भी हो सकता है कि मर्चेंट बैंक किस तरह से ट्रेड और ऑपरेट करता है, इस फिनोमेना को देखा जाए. सो एक्शंस और बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बिजनेस रिसर्च में. अब एक यूजफुल और नेचुरल टेक्निक डाटा को कलेक्ट करने के लिए कि जब हमने एक्शंस और बिहेवियर्स पे डाटा कलेक्ट करना हो तो एक यूजफुल और इम्पॉर्टेंट और नेचुरल टेक्निक हमारे पास ऑब्जर्वेशन होती है. ऑब्जर्वेशन इन्वॉल्व्स गोइंग इनटू द फील्ड, the factory, the supermarket, the waiting room, the office, or the trading room, watching what workers, consumers, or day traders do, and describing, analyzing, and interpreting what one has seen. Observational methods are best suited for research requiring non-self-report descriptive data, that is, when behavior is to be examined without directly asking the respondents themselves. Observation concerns the planned watching, recording, analysis and interpretation of behavior, actions or events. अब observation में हम फील्ड पे जाते हैं, हम ये देखते हैं कि हमारे जो एम्प्लॉयज हैं या हमारे जो वर्कर्स हैं या आपके जो कंज्यूमर्स हैं या डे ट्रेडर्स हैं वो किस तरह से बिहेव करते हैं. उनके बिहेवियर्स को देखने के बाद उनके बिहेवियर्स को हम डिस्क्राइब करते हैं, एनालाइज करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं. यानी जो कुछ हम ऑब्जर्व करते हैं हम उसको इंटरप्रेट करते हैं. अब ऑब्जर्वेशनल मेथड्स बेस्ट सूटेड होते हैं उन सिनेरियोज में कि जिनमें आप रिस्पोंडेंट से डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं कर रहे होते या कुछ रिसर्च क्वेश्चंस की नेचर ऐसी होती है कि आप उनसे क्वेश्चन नहीं कर सकते, तो ऑब्जर्वेशनल मेथड्स वहां पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. Observation concerns planned watching, recording, analysis and interpretation of behavior, actions or events. Now moving onwards, अब हम बात करते हैं 4 key dimensions that characterize the type of observation की. First dimension is controlled versus uncontrolled observational studies. A distinction can be made between observation conducted in controlled or artificial versus uncontrolled or natural setting. Observation is often conducted in a natural setting. However, observation is also a potential method of data collection within an experimental, controlled research tradition. अब जब हम controlled versus uncontrolled observational studies की बात करते हैं, हम कहते हैं कि observations controlled artificial setting में भी हो सकती है और uncontrolled
नेचुरल सेटिंग में भी हो सकती है। जनरली ऑब्जर्वेशंस नेचुरल सेटिंग्स में कंडक्ट की जाती हैं कि आप एक फिनोमिना को ऑब्जर्व करते हो नेचुरल सेटिंग में कि वो फिनोमिना जैसे हो रहा है आपने उसको ऑब्जर्व किया। हाउएवर अगर आपके पास कंट्रोल्ड सेटिंग है, एक्सपेरिमेंटल सेटिंग है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ट्रेडिशन है, तो उसमें भी ऑब्जर्वेशन पोटेंशियल मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन हो सकती है। सो कंट्रोल्ड वर्सेस अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशनल स्टडीज हो सकती हैं। ये कंट्रोल्ड या आर्टिफिशियल सेटिंग में भी हो सकती है और अनकंट्रोल्ड या नेचुरल सेटिंग में भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। सेकेंड डायमेंशन इज पार्टिसिपेंट वर्सेस नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। In the case of non-participant observation, the researcher is never directly involved in the actions of the actors but observes them from outside the actor's visual horizon, for instance via a one-way mirror or a camera. Participant observation is an approach that has frequently been used in case studies, ethnographic studies, and grounded theory studies. In participant observation, the researcher gathers data by participating in the daily life of the group or organization under study. अब जब हम पार्टिसिपेंट वर्सेस नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में रिसर्चर कभी भी डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता एक्शंस में, कि जिन लोगों को वो ऑब्जर्व कर रहा होता है उनके एक्शंस में वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता, बल्कि वो एज एन आउटसाइडर ऑब्जर्व करता है। वो पार्टिसिपेट नहीं करता डेली लाइफ एक्टिविटीज में। जो आपके सब्जेक्ट्स हैं जिन पर आप रिसर्च कर रहे हैं उनकी डेली लाइफ एक्टिविटीज में आप पार्टिसिपेट नहीं करते, बल्कि एज एन आउटसाइड ऑब्जर्वर आप उनको ऑब्जर्व करते हैं। जबकि पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन वो अप्रोच होती है जो हम केस स्टडीज, एथनोग्राफिक स्टडीज और ग्राउंडेड थ्योरी स्टडीज में यूज करते हैं। और पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में रिसर्चर डेटा गैदर करता है डेली लाइफ एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करके, कि आप जिस ग्रुप को स्टडी कर रहे हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी कर रहे हैं, आप उनकी डेली लाइफ एक्टिविटीज का पार्ट बन जाते हैं और फिर उनको स्टडी करते हैं। तो जो सब्जेक्ट्स अंडर स्टडी होते हैं आप उनकी डेली लाइफ एक्टिविटीज का पार्ट बन जाते हैं और फिर आप उनको स्टडी करते हैं। सो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में आप ग्रुप या जिस ऑर्गेनाइजेशन को आप स्टडी कर रहे हैं उनकी डेली लाइफ एक्टिविटीज का पार्ट बन जाते हैं, जबकि नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में आप एज एन आउटसाइड ऑब्जर्वर उनको ऑब्जर्व करते हैं और आप उनके एक्शंस में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते। नाउ स्ट्रक्चर्ड वर्सेस अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशनल स्टडीज। When the observer has a predetermined set of categories of activities or phenomena planned to be studied, it is structured observational study. Formats for recording the observations can be specifically designed and tailored to each study to suit the goal of that research. Structured observation is generally quantitative in nature. At the beginning of a study, it is also possible that the observer has no definite ideas of the particular aspects that need focus. Observing events as they take place may also be a part of plan, as in many other forms of exploratory and qualitative research. In such cases, the observer will record practically everything that is observed. Such a study will be an unstructured observational study. Unstructured observational studies are claimed to be the hallmark of qualitative research. अब जब हम structured versus unstructured observational studies की बात करते हैं, हम कहते हैं कि जब observer के पास predetermined set of categories of activities या phenomena planned to be studied हो, कि जब आपने पहले से प्लान किया हुआ हो कि हमने किस phenomena को स्टडी करना है और कौन सी categories of activities को फोकस करना है, तो ऐसी स्टडीज, ऐसी ऑब्जर्वेशन स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशंस होती हैं कि आपके पास प्री डिटर्मिन्ड सेट ऑफ कैटेगरीज ऑफ एक्टिविटीज हैं जिनको आपने ऑब्जर्व करना है। अब फॉर्मेट्स फॉर रिकॉर्डिंग द ऑब्जर्वेशन को आप स्पेसिफिकली डिजाइन कर सकते हो और टेलर कर सकते हो टू ईच स्टडी, कि जिस तरह के आपके रिसर्च क्वेश्चन हो उस तरह के आप फॉर्मेट्स डेवलप कर देते हो। ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करने के लिए आप फॉर्मेट्स को स्पेसिफिकली डिजाइन कर लेते हो।
आपकी जो स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशनल स्टडीज होती हैं जनरली क्वांटिटेटिव इन नेचर होती हैं। इसी तरह से जब हम अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशनल स्टडीज की बात करते हैं, हम ये कहते हैं कि ये पॉसिबल होता है समटाइम्स कि ऑब्जर्वर के पास डेफिनेट आइडियाज नहीं होते कि हमने किन पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स को स्टडी करना है। कि अगर आपने कोई ऐसी रिसर्च स्टार्ट की कि एट द बिगिनिंग ऑफ द रिसर्च ऑब्जर्वर या रिसर्चर के पास डेफिनेट आइडिया या क्वेश्चंस नहीं है, तो जो आपकी अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशनल स्टडीज हैं ये आपको हेल्प करते हैं कि अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशनल स्टडीज में आप जो कुछ ऑब्जर्व कर रहे होते हैं वो तमाम चीजें आप रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशनल स्टडीज जनरली एक्सप्लोरेटरी या क्वालिटेटिव इन नेचर होती हैं। That's why we usually say that unstructured observational studies are claimed to be the hallmark of qualitative research. Now, concealed versus unconcealed observation. Concealment of observation relates to whether the members of the social group under study are told that they are being investigated. A primary advantage of concealed observation is that the research subjects are not influenced by the awareness that they are being observed. Unconcealed observation is more obtrusive, perhaps upsetting the authenticity of the behavior under study. अब जब हम कंसीलमेंट या अनकंसीलमेंट की बात करते हैं तो हम ये बात करते हैं कि कंसीलमेंट ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब ये होता है कि क्या आपके जो मेंबर्स हैं सोशल ग्रुप के, जिन लोगों को आप स्टडी कर रहे हैं, क्या उनको पता है कि आप उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं या उन पर स्टडी कंडक्ट की जा रही है। अगर उनको पता है तो ये अनकंसील्ड ऑब्जर्वेशन है। अगर आपके मेंबर्स ऑफ सोशल ग्रुप को नहीं पता कि उनको ऑब्जर्व किया जा रहा है तो ये कंसील्ड ऑब्जर्वेशनल स्टडीज हैं। अब डिफरेंट सिनेरियोज हो सकते हैं। कुछ सिनेरियोज में कंसील्ड ऑब्जर्वेशंस इंपॉर्टेंट होती हैं कि जब आपको ये लगता है कि अगर आपने ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स को या जिन लोगों को आप स्टडी कर रहे हैं उनको अगर आपने बता दिया कि उनको स्टडी किया जा रहा है और अगर आपको ये लगता है कि उनको बताने से उनका बिहेवियर चेंज हो जाएगा तो आप कंसील्ड ऑब्जर्वेशनल स्टडीज की तरफ जाते हैं। अनकंसील्ड ऑब्जर्वेशंस वो ऑब्जर्वेशंस जिसमें आप बता देते हैं मेंबर्स को कि उनको स्टडी किया जा रहा है, आप कुछ भी नहीं छुपाते, अनकंसील्ड होता है सब कुछ, तो वहां पर आप ये बता रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स को। सो ये भी डिपेंड करता है कि आपका रिसर्च क्वेश्चन कैसा है कि अगर बताने से ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स का या सब्जेक्ट्स अंडर स्टडी का बिहेवियर चेंज नहीं होगा तो अनकंसील्ड ऑब्जर्वेशनल स्टडीज की तरफ जाया जा सकता है। सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू कंसीडर कि आपकी ऑब्जर्वेशन कंसील्ड होगी या अनकंसील्ड होगी, और यहाँ पर एथिक्स को कंसीडर करना, एथिकल फैक्टर्स को कंसीडर करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नाउ टू इम्पॉर्टेंट अप्रोचेस टू ऑब्जर्वेशन। फर्स्ट, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन. A key characteristic of participant observation is that the researcher gathers data by participating in the daily life of the group or organization under study. This enables the researcher to learn about the activities of the group under study in a natural setting from an insider point of view through observing and participating in these activities. It may be narrowly identified as participation in the way of life of the social group under study, combined with observing what is going on. Or it may be labeled more broadly to involve not only participation in observation, but also the use of other methods such as interviews. अब जब हम पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का की कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि रिसर्चर डेटा गैदर करता है डेली लाइफ एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करके, कि जिन लोगों को, जिस ऑर्गेनाइजेशन को आप स्टडी कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन की डेली लाइफ एक्टिविटीज में आप पार्टिसिपेट करते हैं और जो सब्जेक्ट्स अंडर स्टडी हैं उनको ऑब्जर्व करते हैं। सो नैरली अगर आप इसको डिफाइन करें तो इसमें पार्टिसिपेशन इन्वॉल्व होती है और ऑब्जर्वेशन भी इन्वॉल्व होती है, और अगर आप ब्रॉडली इसको डिफाइन करें तो इसमें ना सिर्फ पार्टिसिपेशन और ऑब्जर्वेशन इन्वॉल्व होती है बल्कि इसमें दूसरे मेथड्स भी आप देख सकते हैं और यूज कर सकते हैं, जैसा कि इंटरव्यूज। नाउ द पार्टिसिपेटरी एस्पेक्ट ऑफ पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन. Participant observation combines the processes of participation and observation. Nonetheless, participant observation should be distinguished from both pure observation and pure participation.
Pure observation seeks to remove the researcher from the observed actions and behavior. The researcher is never directly involved in the actions and behavior of the group under study. Pure participation has been described as going later. The researcher becomes so involved with the group under study that eventually every objectivity and research interest is lost. अब अगर हम पार्टिसिपेटरी एस्पेक्ट ऑफ पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन की बात करें तो हम कहते हैं कि पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में पार्टिसिपेशन और ऑब्जर्वेशन दोनों प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, प्योर ऑब्जर्वेशन एंड प्योर पार्टिसिपेशन। प्योर ऑब्जर्वेशन में आप ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि आप एक्शंस और बिहेवियर्स को प्योरली ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, आप डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते एक्शंस और बिहेवियर्स में, बल्कि सिर्फ आप ऑब्जर्व करते हैं। प्योर पार्टिसिपेशन में आप नेटिव हो जाते हैं, यानी आप फुली पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं उन डेली लाइफ एक्टिविटीज में, और आप इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं उस ग्रुप में कि समटाइम्स ऑब्जेक्टिविटी और रिसर्च इंटरेस्ट जो है वो लॉस्ट हो जाता है। सो ये दो अलग अलग चीजें हो गई, प्योर ऑब्जर्वेशन एंड प्योर पार्टिसिपेशन। A distinctive feature of participant observation is that the researcher participates in the social group under study. The researcher may do so to different extents. The highest degree of participation occurs with complete participation. In this case, the researcher lives or works with the subjects under study and tends to assume a pre-established role, for instance, the role of a co-worker. In complete participation, the researcher may conceal that she is an observer, behaving as naturally as possible and seeking to become an accepted member of the social group. अब distinctive feature जो है participant observation का वो ये है कि आप participate करते हो social group की activities में। अब इसके डिफरेंट एक्सटेंट्स हो सकती हैं। सबसे पहली है कंप्लीट पार्टिसिपेशन, कि कंप्लीट पार्टिसिपेशन में रिसर्चर जो है वो काम करता है उन लोगों के साथ, जिन लोगों को वो स्टडी कर रहा होता है उन लोगों के साथ काम करता है। से फॉर एग्जांपल उनका को-वर्कर हो सकता है। कंप्लीट पार्टिसिपेशन में रिसर्चर जो है वो कंसील करता है, छुपाता है कि वो ऑब्जर्वर है, क्योंकि वो एज नेचुरली एज पॉसिबल बिहेव करने की कोशिश कर रहा होता है कि वो उस सोशल ग्रुप का एक्सेप्टेड मेंबर बन जाए और फिर उसको ऑब्जर्व करें। इन मैनी सिचुएशंस ऑब्जर्वेशनल स्टडीज आर बेस्ड ऑन मॉडरेट पार्टिसिपेशन। अब सेकेंड एक्सटेंट ये हो सकती है कि आप मॉडरेट पार्टिसिपेशन की तरफ जाएं। इस केस में in the case of moderate participation, the researcher assumes an intermediate position between becoming a complete insider, a complete participant, and becoming a complete outsider, as in non-participant observational studies. In moderate participation, the researcher observes the scene under study, maintaining a certain distance from it and never intervening. अब moderate participation में आप intermediate position पर होते हैं कि आप complete insider भी नहीं होते और complete outsider भी नहीं होते, बल्कि आप moderate participation show कर रहे होते हैं। In case of active participation, the researcher does not conceal that she is an observer, but explains the fact that she is an observer to the social group under study right from the start. This allows the researcher to not only observe the everyday activities of the subjects, but also to engage in those activities and thus to put them into practice. अब एक्टिव पार्टिसिपेशन के केस में रिसर्चर कंसील नहीं कर रहे होते, छुपा नहीं रहे होते कि वो ऑब्जर्वर है, बल्कि वो ये फैक्ट एक्सप्लेन करते हैं कि सब्जेक्ट्स को जिनको वो स्टडी कर रहे हैं सोशल ग्रुप को ये बताते हैं कि उनको ऑब्जर्व किया जा रहा है, और ये बताने के बाद रिसर्चर उनकी डेली लाइफ एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करता है। नाउ द ऑब्जर्वेशन एस्पेक्ट ऑफ पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। While participating, the researcher should observe and record and at a later stage analyze behavior, actions, interactions, events and the like. Getting started with participant observation and becoming a part of a social group is not without its difficulties. There are several issues that must be addressed. These include choosing a site, a specific department, business unit, plant, supermarket, etc., gaining permission, the selection of key informants and familiarizing oneself with the research setting. अब जब हम ऑब्जर्वेशन एस्पेक्ट ऑफ पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं तो हम कहते हैं पार्टिसिपेट करते हुए रिसर्चर ऑब्जर्व करता है, रिकॉर्ड करता है और फिर एनालाइज करता है बिहेवियर्स को, एक्शंस को और इंटरैक्शंस को। अब इसमें उसको डिफिकल्टीज को भी फेस करना पड़ता है
कुछ इश्यूज भी होते हैं जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत होती है, जिसमें सबसे पहला ये कि स्पेसिफिक साइट सेलेक्ट करनी होती है, परमिशन गेन करनी होती है, की इन्फॉर्मेंट्स को सेलेक्ट करना होता है और अपने आप को फैमिलराइज करवाना होता है रिसर्च सेटिंग में. नाउ स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन. Structured observation is focused in nature as it looks selectively at predetermined phenomena. The focus of structured observation is fragmented into small and manageable pieces of information such as information on behavior, actions, interactions or events. जैसे हमने पहले भी बात की कि structured observation में आप specific phenomena को डिस्कस कर रहे होते हो, specific phenomena को observe कर रहे होते हैं. So ये focused in nature होती है. Now the use of coding schemes in structured observation. The development of coding scheme is crucial aspect of structured observation. Coding scheme को develop करना बहुत important होता है structured observation में. Coding scheme में predetermined categories होती है. Data को record करने के लिए, जो कुछ आपने observe किया उसको record करने के लिए. अब ये schemes different forms और shapes में हो सकती हैं. इन coding schemes को develop करना भी straightforward नहीं होता. आप अपने रिसर्च क्वेश्चन को यूज करते हैं इन कोडिंग स्कीम्स को डेवलप करने के लिए और आपका रिसर्च क्वेश्चन आपको स्टार्टिंग पॉइंट प्रोवाइड करता है इन कोडिंग स्कीम्स को डेवलप करने के लिए. नाउ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑब्जर्वेशन. अब अगर हम एडवांटेजेस ऑफ ऑब्जर्वेशन की बात करें तो सबसे मेन एडवांटेज ऑब्जर्वेशन का इसकी डायरेक्टनेस है कि ऑब्जर्वेशंस की मदद से आप बिहेवियरल डाटा गैदर करते हो विदाउट आस्किंग क्वेश्चंस, कि आप इसमें सवाल नहीं कर रहे होते रिस्पोंडेंट से, बल्कि बिहेवियरल डाटा को गैदर कर रहे होते हैं बाय ऑब्जर्विंग. नेचुरल वर्क एनवायरनमेंट में आप एम्प्लॉयज को, लोगों को ऑब्जर्व कर सकते हैं. लैब सेटिंग में भी आप उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं. सो उनकी एक्टिविटीज को, उनके बिहेवियर्स को आप देख सकते हैं विदाउट आस्किंग देम क्वेश्चंस. फिर आप इन बिहेवियर्स को नोट करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, एनालाइज और इंटरप्रेट करते हैं. इसके अलावा जब हम एडवांटेजेस ऑफ ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं, हम कहते हैं कि ऑब्जर्वेशन से हम ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल से डाटा गैदर कर सकते हैं, कि उन ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल से कि जिनसे हम अगर इंटरव्यू करें या डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछें तो हो सकता है हमें इतना एक्यूरेट डाटा ना मिले कि जितना ऑब्जर्वेशन से मिल सकता है. फॉर एग्जाम्पल वेरी यंग चिल्ड्रन एंड एक्सट्रीमली बिजी एग्जैक्टिव्स, कि अगर हम डायरेक्टली उनसे क्वेश्चंस करें तो हो सकता है हमें उतना एक्यूरेट डाटा ना मिले, या हो सकता है कि वो रिलैक्टेंट हो हमें डाटा प्रोवाइड करने में. सो ऑब्जर्वेशन से हम ये डाटा गैदर कर सकते हैं. नाउ ऑब्जर्वेशन एज एन ऑब्वियस एंड एप्रोप्रिएट टेक्निक टू स्टडी एक्शंस एंड बिहेवियर. Though moods, feelings and attitudes can be guessed by observing facial expressions and other non-verbal behaviors, the cognitive thought processes of individuals cannot be captured. In other words, it is very difficult to identify reasons behind behavior of the subjects under study. Observation is therefore often used as a technique to collect data that complement data obtained by other techniques such as interviews. A practical problem of observation is that it is time consuming. Many forms of observation require the observer to be physically present, often for a prolonged period of time. For instance, participant observation entails the immersion of the researcher into the social group that is under study for many months and often even years. अब हम behaviors को तो study कर सकते हैं observation के through, लेकिन cognitive thoughts के जो उन behaviors की तरफ आपके subjects को lead कर रही हैं, उनको हम नहीं स्टडी कर सकते ऑब्जर्वेशन से, कि कॉग्निटिव थॉट प्रोसेस क्या है उसको हम कैप्चर नहीं कर सकते. इसलिए हम ऑब्जर्वेशन को यूज करते हैं एज टेक्निक टू कलेक्ट डाटा, जो कॉम्प्लीमेंट करता है दूसरे मेथड्स को, कि हम इंटरव्यूज के साथ ऑब्जर्वेशंस को भी यूज कर सकते हैं. इसी तरह से ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है कि ऑब्जर्वेशन में आपको बहुत टाइम स्पेंड करना पड़ता है. इवन कि पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन की जब हम बात करते हैं तो आपको मंथ्स इवन ईयर्स स्पेंड करना पड़ते हैं इस मेथड में. सो आज हमने डाटा कलेक्शन मेथड्स की बात की, ऑब्जर्वेशंस की बात की. यहाँ पर हम अपने इस लेक्चर को एंड करते हैं. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे. थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज.